Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss Boyle's law. Beta, this law is given by Robert Boyle in 1662. Name of scientist Robert Boyle. इसने लॉ दिया था बेटा 1662 में दिया था रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस लॉ को? हाउ वी कैन डिस्कस दिस बेटा? सपोज दिस इज एनी कंटेनर vessel, and beta in this vessel, in this container, we fit we set a piston. This is the piston, movable piston beta, and this is the gas present in this vessel. Suppose any gas here beta, if we apply some pressure over this gas, then what happens? With increase in pressure अगर increase करते हैं इसके ऊपर, then what happen? अगर हम pressure apply करेंगे इस piston पर, then what happen beta? The volume of the gas decreases. Mean if we increase pressure, volume of the gas decreases and vice versa. Simple सा point है. Temperature remaining constant at constant temperature. At constant टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी गैस का और किसी गैस के ऊपर बेटा, देन व्हाट हैपन? इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. यही बॉयल्स लॉ में हमें डिस्कस करना है. कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है. देखिए तो क्या होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to the pressure of the gas. Is inversely proportional to the pressure of the gas. मीन अगर गैस का प्रेशर भी हम बढ़ाए हैं, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल सा पॉइंट है. मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मैथमेटिकली क्या लेंगे हम यहाँ पर? सपोज बात तो वही है, किसी भी तरीके से आप बोलो. ओके, मीन मैथमेटिकली वी कैन राइट बेटा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट temperature. This, if you remove the sign of proportionality beta, then we can apply constant of proportionality, that is k ले लिया हमने, k into 1 upon p. Okay, at constant temperature. बेटा अगर हम p को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, then it becomes pv is equal to k. This at constant temperature. This is equation first assume कर लिया आपने. Now बेटा if we assume कि भाई V1 is the volume of the gas at pressure P1 and V2 is the volume of the gas at pressure P2. डिफरेंट प्रेशर वैल्यूज पर हम डिफरेंट वॉल्यूम्स अज्यूम कर लेते हैं गैसेस के यहाँ पर. देन हाउ वी कैन डिस्कस दिस? इफ V1 is volume of the gas at pressure P1 and V2 is volume of the gas at pressure P2. Okay, put these values in first. Put in equation first. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा इन वैल्यूज को, then we get two more equations. हमें दो इक्वेशन और मिलेंगे. What we get? देखिए, if you put in equation first, then what happens बेटा? We get बेटा P1 V1 is equal to K. इक्वेशन सेकंड ये मिल जाएगी आपको, P1 V1, प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 हो जाएगा. इसी तरह सिमिलरली बेटा P2 V2 इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन थर्ड होगी. ऑन कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड, ऑन कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, व्हाट वी गेट बेटा?
हमें क्या मिलेगा भाई, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, सिंपल सा पॉइंट। मीन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज फाइनल इक्वेशन फॉर Boyle's law एट constant temperature. Okay, this equation is useful for numerical purpose also. Okay, तो ध्यान रखना P1 is the initial pressure, V1 is initial volume of the gas बेटा, similarly P2 is बेटा final pressure and V2 is final volume of the gas at constant temperature. Okay, now what is significance of this law? अब क्या सिग्निफिकेंस है इसके, हमें सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है। मीन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इन आवर डेली लाइफ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ देखिए, अब हमें डिस्कस करना है इसके लिए, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ। Significance of Boyle's law बेटा, significance is nothing but importance। क्या importance है Boyle's law की, what is importance of Boyle's law। देखिए क्या importance है, क्या significance है इस law की बेटा। भाई we know very well according to Boyle's law PV is equal to क्या होता है बेटा, K at constant temperature। अभी हमने डिस्कस किया दिस वन। ओके, नाउ यू नो वेरी वेल डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर एनी गैस डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड P इज इक्वल टू K। देयरफॉर फ्रॉम दिस V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, K by P। पुट दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम हेयर इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, M अपॉन V की जगह आपने पुट किया K अपॉन P ऊपर आ गया बेटा। ओके, नाउ मास ऑफ एनी गैस, अभी डेफिनेशन में हमने बोला कि मास गिवन है गैस का अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस। गिवन मास बोल रहे हैं बार बार हम, गिवन मास मीन मास नोन है गैस का, हमें पता है मास कितना है गैस का। इसका मतलब क्या है, दिस इज गिवन वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो मास क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। के भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे देन वी गेट अनदर कांस्टेंट बेटा, दिस इज के डैश इनटू पी। सपोज ये ले लिया हमने। ओके, तो दिस मींस दैट यहां से क्या आ गया बेटा कि जो डेंसिटी है गैस की, एयर की जो डेंसिटी होगी सपोज, या किसी भी गैस की जो डेंसिटी होगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ यू रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देन दिस मींस द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो यहाँ पर बेटा कहाँ इंपोर्टेंस होगी इसकी, क्या सिग्निफिकेंस होगी इसकी। देखो बेटा, इफ प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, हम ये बोलेंगे एट हाई एल्टीट्यूड, यू नो वेरी वेल बेटा, कहाँ पर, वेयर इट इज एप्लीकेबल बेटा, दिस इज एप्लीकेबल एट हाई एल्टीट्यूड। एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा बेटा, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द एयर आल्सो डिक्रीजेस। अगर एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी, दिस मींस दैट बेटा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ड्यू टू दिस, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी बेटा, ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही डिक्रीज हो जाएगी, देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट फॉर ब्रीथिंग पर्पस, और ब्रीथिंग पर्पस के लिए सफिशिएंट ही नहीं होगी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाई एल्टीट्यूड पे बेटा। सो द माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स हैं, दे कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, दे मे सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस और हेडेक। ओके बेटा, तो
दिस बेटा ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस, और वी कैन से सो this amount is not sufficient for breathing purpose, and the climbers लिखो या माउंटेनियर्स लिखो बेटा, may suffer from altitude sickness और headache etc. ओके, इस टाइप के डिजीज से सफर करेंगे वो बेटा। ओके, दे में सफर फ्रॉम दिस डिजीज। अगर ऐसा ही होगा देन दे कैन नॉट थिंक प्रॉपरली बेटा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ही नहीं ले पाएंगे। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाएंगे तो व्हाट हैपेंस बेटा, प्रॉब्लम हो गया, कोई फायदा नहीं वहां जाने का। सो व्हाट हैपेंस, सो टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स दे गो विद ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। सो टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स they carry oxygen cylinders. इसलिए आपने देखा हो कभी भी डिस्कवरी चैनल पर क्या कैरी करके लेके जाते हैं, वो O2 सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर में बेटा एयर प्रेशर मोर होगा, मोर एयर प्रेशर होगा तो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ओके, और ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी बेटा तो व्हाट हैपन, दे कैन और आवर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दे कैन वर्क प्रॉपरली। ओके, दिस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ अगर आपको पढ़ना है, रीड करना है तो आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा इसका, हेनरीज लॉ का बेटा। हेनरीज लॉ आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होती है, बट ये आपसे आगे का पॉइंट है, 12th क्लास का पॉइंट है। फिर भी अगर आपको देखना है हेनरीज लॉ क्या होता है तो आप पॉपअप से देख सकते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ बेटा बॉयल्स लॉ। आपके लिए वैसे यूजफुल है, जो यहीं तक है बस इतना लिखना आपको। ओके, नाउ तो ये सिग्निफिकेंस होगी, ध्यान से आपको करना है, रीड करना है इसको। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ बेटा इसकी। नाउ व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ बेटा। बड़ा ही इजी लॉ है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से आप पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो को देखोगे। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ बेटा मैं, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा मैं। ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो, पूरा वीडियो देखा करो, कंप्लीट वीडियो को देखिए आप ध्यान से, तभी समझ में आता है। स्क्रीनशॉट मत लो, देखना चाहिए आपको ध्यान से। ओके, तो व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, देखो अभी हमने डिस्कस किया था बेटा कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस मींस वी कैन राइट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी तो लिख सकते हैं। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। And if you remove the sign of proportionality here बेटा, we can apply constant of proportionality K dash लगा लिया मैंने, K dash into 1 by V, ये आ गया बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है बेटा। ओके, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो y एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, m स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, ये x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग भी जाएगा, जो भी इसका कंपोनेंट है, ये m स्लोप हो गया। x जो भी इसके अकॉर्डिंग आएगा मीन जैसे 1 बाई वी आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। c इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पर होता है बेटा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है इस इक्वेशन में। इसके साथ कंपेयर करेंगे आप, आपको ग्राफ प्लॉट करना बिल्कुल ईजी लगेगा, ट्रिक वे है ये, ठीक है ना। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए
along y axis you have to take pressure, along x axis you have to take 1 by v, reciprocal of volume. स्लोप क्या हो गया, k dash is the slope of this and intercept is 0. देखिए, if you plot a graph between pressure versus 1 by v, पता चल गया आपको। यहाँ से x एक्सिस के अलॉन्ग 1 by v लेना आपको, y एक्सिस के अलॉन्ग आपको प्रेशर लेना, दिस इज ओरिजिन बेटा। देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। अगर इंटरसेप्ट 0, मैं बता रहा था आपको कि इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पर होता है, अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो जाए मीन दिस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन से पास होती है। तो यू गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस हुज स्लोप इज k डैश, ये k डैश स्लोप हो गया इसका, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, नाउ ये फर्स्ट ग्राफ हो गया इसका। सेकंड ग्राफ हम क्या डिस्कस कर सकते हैं पर देखिए बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। दिस मीन दैट वी कैन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहां से ग्राफ और प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस बेटा। y एक्सिस के अलोंग हम प्रेशर ले लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग हम वॉल्यूम ले लेते हैं बेटा। यू नो वेरी वेल, if pressure increases then volume of the gas decreases, सिंपल सा पॉइंट है। अगर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, सिंपल सा पॉइंट है। मीन प्रेशर मैक्सिमम तो वॉल्यूम मिनिमम है। एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेज देन वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड वी गेट ए कर्व ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की आपको एक कर्व मिलेगी। ओके, दिस इज द कर्व फॉर दिस ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ थर्ड ग्राफ हम ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर थर्ड ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन PV वर्सेस P, PV वर्सेस P। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसी में बेटा कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा कि P इंटू V इजकल टू K होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है मीन किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ये सेम रहेगी। तो PV वर्सेस P में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दिस PV वर्सेस P, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस हमने लिया। ओके, अलोंग x एक्सिस बेटा we can take, along y axis we can take product of P and V, and along x axis we can take pressure, this, ये ओरिजिन हो गया। अब देखो यहाँ पर थर्ड ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ मैं इसके लिए बेटा। भाई एज्यूम कर लेते हैं कि एट टेम्परेचर T1, दिस इज द टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर सपोज प्रोडक्ट ऑफ P एंड V ये है, दिस इज द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये है। नाउ इस अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अगर हम प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। मीन जितना प्रेशर आप इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। मीन प्रोडक्ट ऑफ P एंड V रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या रहेगी बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ मच हाई प्रेशर वी अप्लाई है, कितना प्रेशर अप्लाई करते जाए यहाँ पर इसमें, प्रोडक्ट ऑफ P एंड V रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी। मीन हर बार हम किसी भी प्रेशर पर चेक कर ले बेटा, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। वी गेट ए स्ट्रेट लाइन बेटा पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ सिमिलरली अगर हम कोई अनदर टेम्परेचर लेते हैं बेटा, दिस इज टेम्परेचर T2 and here T2 is greater than T1, suppose higher temperature पर, at temperature T2 क्या होगा, T2 टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या हो जाएगी, P इंटू T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम V2 हो जाएगा। T1 पर क्या था, V1 था सपोज, तो T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2, और प्रेशर सपोज हमने वही रख लिया जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसी प्रेशर पर प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि बेटा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हाई स्पीड से स्ट्राइक करेंगे ओवर द वॉल्स ऑफ द वेसल, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। गैसेस कैन एक्सपेंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, यू नो, इसका मतलब गैसेस अगर एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ आउटरमोस्ट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यही पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड V क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ये इंक्रीज होगी प्रोडक्ट, अब फिर जो भी इंक्रीज वैल्यू सपोज प्रोडक्ट ऑफ P एंड V एट टेम्परेचर T2, हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P एंड V एट टेम्परेचर T2, सपोज दिस। ओके, उसके बाद फिर से हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर देंगे टेम्परेचर को, एंड नाउ अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ P एंड V अगेन रिमेन्स सेम कांस्टेंट, मीन अगेन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो इन दिस वे वी गेट स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी हायर टेम्परेचर पर लेते हैं, जितना हाई टेम्परेचर हम लेते जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी क्या होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। बट अगर फिर प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो बेटा इट रिमेन्स कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, so this is all about graphical representation and definition as well as significance of Boyle's law. Thanks a lot.